Navru bhai, hi, welcome to my home and My pleasure. आप आप पहली बार मेरे घर आए हो I know. and I think we've been planning for this session for last 6 months or even Long more. I time, guess. long time in Long making. time. So finally today it's happening. So welcome you My and pleasure. for all of you, नवरूप भाई को वैसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बस बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ introducing Navroop Bhai to all of you. Navroop Bhai is a third generation IPL lawyer. Correct me if I'm wrong. Yeah, you're right. And he practices in Delhi High Court. He's the author of two books, two very successful books. And I would urge all of you to refer to his books to understand the geopolitical context in detail. And secondly, he's a very good friend, and I think we've been connected in Twitter for long, right? For years, more than a decade now. More than a decade now. Yep. And I mean, we share similar interests in geopolitics and spirituality and all. So, Navroop Bhai, welcome to the Index Fair. And I think it's a pleasure hosting you. My pleasure too. So, Navroop Bhai, हम लोग let's straight come to the point. If we talk about the current scenario, जैसे अभी चल रहा है, I mean, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है और आज हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 तारीख को, 25 अप्रैल 2025. So the things are on hot pot, right? Absolutely. जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है. So I mean, obviously I will give I'll hand over the mic to you, and before that I would like to set up the context of last probably a year जहाँ से ये सब शुरू हुआ. From the October attack in Israel. So there are 20 points, Navroop Bhai. जब आप आ रहे थे, I was just मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कि हम लोग किस पे बात करेंगे and how what कि क्या हुआ है अभी और क्यों हो रहा है. हाँ, क्या से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है. People do not क्यों know. समझने के लिए हमें हो सकता है कि हमें right at this moment whatever is the breaking news इस पे फोकस नहीं करके थोड़ा पहले से शुरुआत करना पड़ेगा, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बेटर. बिल्कुल. सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो देयर आर 20 पॉइंट्स, नवरूप भाई. द फर्स्ट थिंग, इट स्टार्टेड विद द अक्टूबर अटैक इन इजराइल, जब हमास ने गाजा पे अटैक किया, हमला किया था. And then Israeli, I mean, cities पे जाके उन्होंने gliders के जरिए, parachuters, and they started killing innocent people. Quite similar to what happened, I mean, a couple of days back in Pahalgam. So वहाँ से चीज़ों की मैं देखता हूँ कि शुरुआत हुआ, and after that Israel took a very very firm action against Hamas. They destroyed the Gaza completely. पार्किंग लॉट बना दी. पार्किंग लॉट भी नहीं है, अब तो बिल्कुल खंडर बन गई है. रबल बिल्कुल रबल बन गया है. एंड इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स अ फेयर डीड. अगर आपके सिटीजन के ऊपर कोई अटैक करेगा एंड दे विल किल योर सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड आई मीन रेशियल प्रोफाइलिंग, तो एज अ नेशन you have that right. Absolutely, you have your right to self-defense and defend yourself and also ensure that there are no future attacks coming from that same particular area. So उन्होंने वो किया. Then the theater moved to US according to me, because इसके बाद बाइडन ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा नवरूप भाई, तो एक टाइम ऐसा आया कि बाइडन ने उनकी सप्लाईज तक रुकवा दिया, उनकी आर्टिलरी सप्लाईज. और जब इजराइल वाज आस्किंग फॉर इट, दे वर इन द मिड्स ऑफ एक्शन. ट्रू. तो वहाँ पे उन्होंने सप्लाईज वगैरह रुकवाया. At that time, Biden was winning, by the way. So, I know. At that time. Everybody was predicting that कि Biden आएगा. And also, but after that, that anti-Israel stand that he took, things started changing, and then Trump came, and Trump came quite handsomely, probably more than what Republicans were expecting. So after that, just before that, couple of more things happened in Asia also. जैसे I would start from the Myanmar, because Myanmar में जो military junta है, they started getting weaker because of the rise of the Arakan army. They started capturing territories and all, and Arakan army, उनके साथ भी आप अगर गेम को समझोगे ना,
because anyways Myanmar junta was pro-Buddhist, right? Absolutely. And anti-Christian, because Suki is a Christian, Aung San Suu Kyi is a Christian, so they were basically Buddhist, backed by the Buddhist monk and all. But Arakan Army ने आके बोला कि नहीं, we are the bigger Buddhist, हम ज़्यादा बड़े Buddhist हैं आपसे. So then suddenly they started gaining a lot of territory, and now they are a serious player. साथ में हमारा मणिपुर भी हुआ, उसी के साथ हमारा मणिपुर हुआ, और बाद में बांग्लादेश हुआ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एब्सोल्युटली राइट. सो ये सारी चीज़ें हुई, और बीच में बाइडन की जाते जो यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्टैंड लिए, उनका स्टैंड ये था कि यूरोप को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि आपको रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफेंसिव वेपन्स, यूक्रेन को आपको मतलब रशिया के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वेपन्स सप्लाई करनी है. हाँ, F-16 दिए पोलैंड को, बोला F-16 तो उन्होंने दिए, और बाकी जगह से उन्होंने सारे निचोड़ के दे दिए. पोलैंड पूरा नेटो हमारी पूरा खाली कर दिया, पूरा नेटो खाली हो गया. ठीक है, तो करके उन्होंने वो दे दिया, फ्रांस से दिलवाया. And they also compelled those important European governments like Germany, France and Britain, where they were also ready to send their boots on ground. ये सारी चीज़ें यूरोप में हुए. इसके बाद ट्रंप आ गया. ट्रंप आते ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसका सेकंड चैप्टर शुरू हुआ वो था ट्रेड चैप्टर. He was starting to close the war chapter, the kinetic war chapter, and economic war. He shifted to the economic war. Correct. ताकि ये वॉर वाला कॉन्टेक्स्ट और बढ़िया से बने. हाँ, करेक्ट. तो ताकि उसका पब्लिक सपोर्ट भी बने. अभी तो और बहुत कुछ होना है. अभी शुरुआत हुई है. अभी शुरुआत है. तो ऐसे ये जो सारी कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखोगे, एंड देन इससे चलते हुए देन पाकिस्तान, उनका जैसे ही रेटिंग, इकोनॉमिक रेटिंग उनका ऊपर गया, इस बीच में उनको 2 बारी लोन मिला. IMF से 2 बारी इनको लोन मिला. FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आए. ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ गए. और पाकिस्तान ने जब हमास ने अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उसका कोई बहुत ज़्यादा इजराइल के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला. करेक्ट. ये भी हम सब ने देखा. और अभी पीछे F-16 के लिए बाइडन ने जाते फंड्स भी सैंक्शन कर, और F-16 के जो क्रिटिकल सप्लाई है वो बाइडन जाते उनको अप्रूव कर गया. एंड देन व्हाट वी सॉ दैट द ई टीम, जो चाइना के बॉर्डर पे लगता है, इट इज़ गेटिंग हॉट अगेन. एंड बालूचिस्तान ऑन द सेम टाइम, जहाँ पे चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर पे, तो बालूचिस्तान ऑल्सो इज नाउ हॉट. एंड वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट बांग्लादेश इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो वहाँ पे भी पंगा हो गया. और ये आते एट द सेम टाइम, ये तो एक थिएटर था, यहाँ तक हमारे को कोई इफेक्ट नहीं था. बट बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों ने इंडिया के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है. और they are trying to align their interests to a great extent, which could be our security threat. Right. फिर आसिफ मुनीर का वो स्टेटमेंट आता है, और आसिफ मुनीर अपनी जो मर्जी बकवास करता है. Interestingly, if you see Navru bhai, sorry, I'm digressing for a minute. That's okay. So interestingly, if you see the statement of Asif Munir, it matches very much, with one Mahabharat incident of उद्योग पर्वा, जहाँ पे दुर्योधन भी बिल्कुल ऐसे ही बोलता है. जहाँ पे they were trying to negotiate via diplomacy with दुर्योधन कि भाई आप कुछ तो उनको दे दो, 5 गाँव दे दो. तो दुर्योधन ने अपने पिताश्री को, जो मतलब धृतराष्ट्र को, उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करा कि जी हम एक हो ही नहीं सकते, हम अलग है, ये अलग है, हम अलग है. बिल्कुल वैसे जैसे आसिफ मुनीर बोल रहा था. हाँ. हालांकि अगर अपना ब्लड टेस्ट कराएगा जाके तो उसका 90% डीएनए वो 90 क्या, उसका तो 99% डीएनए इंडियन ही निकलेगा. ही इज द हामिद गुल ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम. एक्चुअली हामिद गुल अपने आप को टर्क समझता था. So anyways, so this is the situation, Navru bhai. So now the mic is yours. Please make sense of it. बिल्कुल. आपने ना बहुत अच्छे तरीके से भाई लेआउट किया है कि ओके अक्टूबर से क्या चल रहा है. बट आई जस्ट गो अ बिट, अगर मुझे 2 मिनट दोगे तो मैं उसको रिकैप कर देता हूँ. ठीक है. द सिचुएशन बिगिनस इन द होल, जो सारा जो खेल शुरू होता है ये 9/11 से स्टार्ट होता है. आई क्विकली इनकैप्सुलेट.
9/11 होता है, उससे पहले प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी के नाम का डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आता है कि अमेरिका नीड्स टू रीसेट इट्स ऑर्डर बिकॉज एंड इट नीड्स अ न्यू पर्ल हार्बर फॉर इट। ये इनका जो नियोकॉन्स था, उनका ब्लूप्रिंट था। 2000 के ये साल 2000 में ये बनता है, और उसके इमीडिएटली 6 महीने बाद जॉर्ज बुश एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में अल गोर के साथ स्वेर इन होते हैं, और वही पूरी नियोकॉन एस्टैब्लिशमेंट बन के आती है। 9/11 होता है, वहाँ से वॉर ऑन टेरर चालू होती है, अफ़गानिस्तान में हमला होता है, और उसके बाद ये लोग घुसते हैं इराक़ में। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कॉलिन पावल, कॉन्डोलीज़ा राइस, वी नो क्या क्या हुआ था। तो इस दौरान एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, आप सबको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जनरल वेल्सले क्लार्क जो नेटो के जनरल थे। वो जब कह रहे हैं कि मैं जब पेंटागन गया था 6 महीने बाद आफ्टर 9/11, तो मुझे जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक आके लिस्ट थमाई कि ये 7 कंट्रीज़ को हमें डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, ये 7 सोवियत कंट्री है, जिसमें लीबिया, जिसमें सूडान, सीरिया, ईरान एंड लेबनान, मतलब यमन, मतलब ये 7-8 कंट्रीज है जो हमें डिस्ट्रॉय करना है। इराक also because ये प्रो सोवियत regimes है, and before the next superpower comes in, America must make sure these regimes, pro Soviet regimes, are dismantled. That is why they went into Iraq, they de-Baathified it. Then cut to, I'll quickly jump because I don't need to, वो तो books लोग पढ़ सकते हैं। Then ये था पॉलिसी आपका बुश के अंदर। फिर आते हैं प्रेसिडेंट ओबामा 2009 में। 2010 का ना 2011 का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, PSD 11। ये प्रेसिडेंट ओबामा के, अगर आप ऊपर जाओगे, बाकी 9 को इन्होंने डिक्लासीफाई कर दिया है, 10 को कर दिया है, 12 को कर दिया, लेकिन 11 को ना ट्रंप ने किया है ना किसी ने किया है। नाउ दिस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर रिजीम चेंज इन मिडल ईस्ट, and to actually supplant the Arab monarchies, the secular dictatorships in the Middle East and North African region with Muslim Brotherhood regimes, right? ये मुस्लिम ब्रदरहुड वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मोहम्मद मुर्सी वाली इजिप्ट में, जो आपने तहरीर स्क्वायर में देखा, जो अरब स्प्रिंग था, वो पूरा इनका प्लान था। वो मेरी बुक में एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, सो आई नीड नॉट इवन गो इनटू इट, राइट? तो वो जो इफेक्ट, जो आप सीरिया का वॉर देख रहे हैं जो 2010 से चल रहा है, यहाँ पे रशिया भी इंटरवीन किया बीच पे, जो चाहे आप यहाँ पे मिडल ईस्ट में आप ये यमन का हुथीस के साथ देख रहे हैं, ये सारा इंटरकनेक्टेड है टू दैट प्रोजेक्ट। एंड मुस्लिम ब्रदरहुड के जो सबसे बड़े पेट्रन्स हैं उस आइडियोलॉजी के, वो हैं आपके हैं टर्की, ठीक है, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इट, and then the financial sponsors are Qatar, right? The Gulf monarchies astoundingly do not like it, ठीक है, they are कट्टर दुश्मन हैं ये लोग। बीच में इन्होंने 2010 में इन्होंने ये जो फ्रेंच राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर नेटो ने लीबिया में गद्दाफी को भी हटाया, होलांडे ने इन्होंने गद्दाफी को भी हटाया था, राइट? वहाँ पे भी मुस्लिम ब्रदरहुड की काइंड ऑफ एक रिसर्जेंस हुआ। वहाँ से आर्म शिप होके सीरिया पे आते थे। पूरे की पूरे इनके डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ये तक बताया कि अगले 6 महीने में, 8 महीने में ये होने वाला, 10 महीने में ये होने वाला। उसके बाद इन्होंने जो इनका जो पूरा का पूरा जो आपकी UAE है, वो जाके लीबिया में बॉम्बिंग करके आता था। सऊदी अरेबिया ने यमन में बॉम्बिंग करी। सो नोइंग ऑल दीज अरब मोनार्कीज एंड इजिप्ट में मोर्सी को तख्ता पलट करके जनरल सीसी आते हैं, द मिलिट्री कम्स बैक, राइट? सो ये जो सारी चीज़ चल रही थी, दिस वाज अ पुशबैक अगेंस्ट द मुस्लिम ब्रदरहुड काइंड ऑफ अ मूवमेंट। तो जो इज़राइल का जो प्ले है, जो नाउ व्हेन वी कम टू व्हाट हैपेंड ऑन 7th of October 2023, एक तो ये बहुत ही हीनियस मैसेकर, आई थिंक द बिगेस्ट किलिंग ऑफ ज्यूज आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। 1200 क्या तकरीबन आदमी मरे थे, ठीक है। पीपल वर रोस्टेड, बेबीज वर मेम्ड, जो हालत थी वो देखने वाली थी। इट वाज ग्रूसम।
पर मेरा एक लेजिटिमेट ना एक क्वेश्चन है और एक लॉजिकल माइंड मुझे बोलता है यार इतनी इतनी एक तो छोटी सी कंट्री है इजराइल कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, हाईली सिक्योर्ड जोन, सो मच ऑफ इंटेलिजेंस, मोसाद, शिन बेट एंड ऑल दो इंटेलिजेंस एजेंसीज, CCTVs, cameras, why were they caught napping? Where were they? बट आपकी कंट्री में कोई पैराग्लाइडर्स लेके आ जाता है और आपको कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। राइडर में नवरूप भाई मोस्टली 2 स्ट्रोक्स इंजन होते हैं, हाँ? जिनके हिट सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। सो अब वेरी इंटरेस्टिंगली 6 महीने पहले की बात है, फरवरी मार्च की बात है, इस साल के लास्ट ईयर की बात है कि जब मोसाद और शिनबेट ने एक्चुअली बोला कि हाँ हमसे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, हमें पता था। बट वेरी इंटरेस्टिंगली लोगों को ये नहीं पता कि हमास की क्रिएशन कैसे हुई। ठीक है, राइट। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम दे स्पाउस मुस्लिम, हमास इज व्हाट, हमास इज आल्सो मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफशूट फॉर पॉलिटिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी है, दैट इज मुस्लिम ब्रदरहुड। Correct. But they are sponsored by many countries like Turkey जो opposite है, right? So interest converge करते हैं। But very interestingly आज मैं जब मैं आ रहा था रास्ते में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था and I'll quote if you want it कि Ariel Sharon was the one who wanted this group to be created so that Palestinian Liberation Organization को dilute किया जा सके गाज़ा में, और जो ऑस्लो अकॉर्ड जो उसको फ्रस्ट्रेट किया जा सके, बिकॉज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ अ 2-state सोल्यूशन। तो अगर एरियल शरॉन का ये है, एंड देन देयर वर अदर थिंग्स, बेंजामिन नेतन्याहू ऑल्सो इन लास्ट फ्यू मंथ्स बिफोर द अटैक ही इंक्रीज द वीज़ाज फॉर हमास टू कम एंड वर्क इन इजराइल। आइए काम करिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के तौर पे, इसके तौर पे लेबर फोर्स के बारे में आपको नहीं पता था। इतना पैसा जो भी आपका जो ईरान के ज़रिए जा रहा है, सब जा रहा है, आपकी इंटेलिजेंस जा रही है, आपको बिल्कुल पता नहीं चला क्या हो रहा था वहाँ पे। एंड नवरूप भाई, हाउ आई एम फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस आई एम आस्किंग यू, हाउ दिस आर ऑल कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो हो रही है। हाँ बिल्कुल, इससे ये बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है। बिल्कुल जुड़ी, मैं आऊँगा, मैं उस पर भी आऊँगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो पिछले फरवरी और अप्रैल में हुआ है, 2 दिन पहले 4 दिन पहले जो दिखा है, मैं उस पर भी आऊँगा। और अचानक पाकिस्तानी आर्मी को इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? एग्जैक्टली। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो इजराइल का क्या है, इजराइल को आई डिस्क्राइब इट एज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इन द मिडिल ईस्ट। आई एम नॉट श्योर हु इज द एयरक्राफ्ट एंड हु इज द कैरियर। Who's the carrier? so you have those what do you say, आपका जो ये आप, if people have not read about it, it's about Yanon plan of Greater Israel. That is the more dominance. The story begins that you have उससे जस्ट अटैक से 15 दिन पहले दिल्ली में G20 समिट होता है सितंबर में, जहाँ पे बाइडन अनाउंस करता है आईमेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो आपका मुंबई से होता हुआ वाया दुबई, वाया सऊदी, वाया जॉर्डन, वाया इजराइल होता हुआ, ग्रीस साइप्रस से होता हुआ ऊपर यूरोप में जाएगा, which is basically an alternate for BRI, absolutely, China's BRI, and it's a good project for India. Correct. एंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो वहाँ पे आया था वो टर्की का था। एर्डोगन ने दिल्ली में खड़े होते होते ही जाते जाते बोल दिया कि ये क्या मतलब हुआ, आपने हमें कैसे बाईपास कर दिया, मतलब गैस और सब कुछ बाईपास करेगी पाइपलाइन। अल्टीमेटली सीरिया वॉर वाज अ गैस पाइपलाइन वॉर, अल्टीमेटली जो थी असाद ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके पीछे उन्होंने सब ड्रामा कराया था। तो ये जो सारा चीज़, ये जो टर्की ने वहाँ किया, उसके जस्ट 15-20 डेज बाद ये हंगामा होता है। ईरान यू मस्ट रिमेंबर, ईरान का उस टाइम पे एक शिया क्रिसेंट बना हुआ है। ईरान उस टाइम पे, अभी तो खैर dwindled है, उस टाइम पे ईरान, इराक में शिया गवर्नमेंट, देन सीरिया में असाद था विद हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला। तो ये पूरा एक क्रिसेंट था, और या ऐसे क्रिसेंट जैसे आपको देखना है देख लो, जो ईरान का डोमिनेंट एक वो था पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस था। और ईरान के डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था, आपका आता है IRGC आता है, विच इज़ द मिलिट्री गार्ड, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो पैरामिलिट्री है, एंड जिसका एक
आई गिव अ 1 minute pretext, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल क्या है. We'll cover Iran because it's Middle East is all about that. Absolutely. ठीक है. So now इसमें क्या आपका आता है कि during Obama administration, Rouhani and Zarif, Rouhani was the president, Zarif was the foreign minister. He was very close to the European elite. ठीक है. Mogherini was the यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम. वियना में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉन कैरी था, ओबामा के पूरा न्यूक्लियर डील. ईरान काफी खुल भी गया था. करेक्ट. सैंक्शंस लिफ्ट हो गए थे, जेसीपीओ साइन हुआ, यूएनएससी से अप्रूवल मिल गया, और P5+1, दैट इज P5 प्लस यूरोप. You thought that Iran is slowly coming back to the mainstream. Mainstream, correct. So the mullahs were able to sell, the Iranian mullah regime was able to sell to its people that look, we are opening up to the world. Correct. Which their people actually welcomed. Which the people welcome. Because the people of Iran are one of the most modern people in the entire Middle East. Absolutely, absolutely. Persia is a far modern geography than compared to anyone. Absolutely. Correct. But the problem is the Iranian Revolutionary Guards were dead against it. Because ever since the death of Ayatollah Ruhollah Khomeini, they have been constantly taking sector by sector, like Pakistani army, oil, mining, construction, real estate. आप बोलते जा रहे हो ऐसे US saying about Iran and IRGC, so ऐसे मेरे मन में हमारे यहाँ एक पार्टी का मेरा थोड़ा सा पिक्चर आ रहा है. ठीक है. So like तो हम गुरुकुल बोलते हैं. So the IRGC actually started to take over sector by sector, but they face a significant pushback during this era, because आपका जो Iranian mullah regime है, so they were they were trying to push back against the revolutionary guard कि लोग देखो हम लोग जो है ओपन अप कर रहे हैं दुनिया को, ये सब the world is accepting us. They were thinking कि हमें legitimization मिल रहा है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का. ठीक है. But then Benjamin Netanyahu thinks कि यार जो ओबामा ने जो स्नैपबैक और जो टाइमलाइंस लगाई, अब उस JCPO में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मेंशन नहीं था. तो नेतन्याहू का लॉजिक था कि यार अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का नहीं होगा तो ये तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, मतलब ये तो वॉरहेड्स लेके मारेगा, हमारे पे कभी भी मार सकता है. एंड एक्सपायरी डेट्स क्या हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद तो ईरान टोटली फ्री हो जाएगा एज पर द डील. ठीक है. पैसा एक बार उनके पास आना चालू हो गया ऑयल का, तो देन दे कैन एडवांस लाइक एनीथिंग एल्स, दे विल बिकम अ चैलेंजर. डिप्लोमेटिक रिलेशन आल्सो इंप्रूव्स विद द वर्ल्ड एंड द वेस्ट. ठीक है. तो ये सब चीज़ चल रही थी. तो इसीलिए द मोमेंट ओबामा वेंट आउट एंड बाइडन कह रहा हूँ, ट्रम्प वन, तो वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू वांटेड ट्रम्प टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड. ठीक है, ऑन ईरान. द फर्स्ट थिंग व्हाट नेतन्याहू ट्रम्प डिड वाज ही ripped apart JCPOA, right? And that destroyed the mullah regime's trust in the international framework. And इतना बड़ा धक्का लगा उनको कि भाई the revolutionary guard was, we told you so. कि भाई ये you cannot trust the Americans. ठीक है. The Europeans and everyone was aghast because the पूरी world was a signatory, China was a signatory, Russia was a signatory to it, and how can one country unilaterally say okay मैं नहीं मानूंगा, right? But then the bigger harakiri happened, which was that they got General Qasem Soleimani assassinated at Baghdad airport in the year 2000. I guess, sorry, in the year 2021, I guess. Okay, right? And Baghdad airport pe, and that he was like the father figure of IRGC. So now you had the IRGC went up in arms. And recently, I read about the reports a couple of months back that Trump actually said that Netanyahu misled me because he was supposed to participate in the operation, but the Israelis did not participate. It was an American-led operation, and the Iranians ultimately went on to blame America for this assassination, so heart and soul, and Israel stood back. Right? It was like
तू कर और बाद में खुद पीछे से हट गया, राइट? विच इज़ वाई दिस टाइम व्हेन दे वांटेड टू बॉम्ब इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, इनका जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना, तुलसी गैवाट का, इनका डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं बॉम्ब करेंगे, हम डिप्लोमेसी पे जाएंगे। एंड दिस टाइम नेतन्याहू इज सेइंग आप हमें बिट्रे करो। आई सेड लुक हू स्टॉप, ठीक है? So now you understand, now in those era, since the Rouhani went and then you had other, Zarif were retired, suddenly the mullahs were, put on the back seat and the IRGC took total control. Correct. और फिर उन्होंने पूरा अपना शियाइट नेटवर्क कल्ट एक्टिवेट किया, हिजबुल्लाह फाइटर्स, बद्र फाइटर्स, ठीक है, जो पूरा का 20-30 जो उनके मलिशियाज है उन्होंने पूरा एक्टिवेट किया। एंड दे मेड श्योर दैट सीरिया स्टूड फर्म, ठीक है, दे मेड श्योर दैट इराक स्टूड इन देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड लेबनान में भी वो रहे। So for Israel, it had to dismantle this Shia Christian because this was the biggest threat to the whole thing. Absolutely. 7th of October provided that opportunity for Israel to go for that jugular thing. Now whether the Mossad deliberately stood down or they were misled to believe कि नहीं होगा, I will leave it to people's interpretation. मेरे को नहीं पता है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। But there are many experts, even Indian experts, who have written कि probably this was, kind of, ठीक है, क्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा उठा लिया जाएगा। They went whole hog on Gaza, मतलब मलिया मेट कर दिया, पब्लिक को नॉर्थ गाजा से निकाला, फिर साउथ गाजा में भेजा, साउथ गाजा से राफा में भेजा, फिर राफा से कहता है इजिप्ट में जाओ, खाली कर दिया, ठीक है। ट्रम्प कहता है वो तो रियल एस्टेट है, मैं तो उस पर अपना होटल बनाऊंगा, ठीक है, मैं तो पोर्ट बनाऊंगा, मुझे तो गाजा को सारे मिडिल ईस्ट के लोग रखे हैं, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद इस दौरान सीरिया का थिएटर एक्टिवेट होता है, बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड चल रहा है, ठीक है। और ये ये चीज़ तब हो रही है जब यूएस एक इलेक्शन में है, मोड में चला गया, प्राइमरीज हो रही हैं, बाइडन की रेटिंग्स ड्रॉप कर रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी प्रॉब्लम में आ गई है। इसके ठीक पहले इंडिया में भी इलेक्शन इंडिया में इलेक्शन हुआ, बाइडन की वो लोग कहते हैं एक कोरस बड़ा अंदर से कि कमाला हैरिस को लाया जाए, ठीक है, बिकॉज एक यंग लेडी है, फीमेल फेस है, वाइस प्रेसिडेंट, और शायद मे बी शी कैन टेक बेटर ऑन टू ट्रम्प, राइट। लेकिन फिर एक हादसा होता है यूएस में जहाँ पे राष्ट्रपति ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, फेमस, and it leads to the whole American base, the youth, the independent, specifically the independent, the nationalists to side one side कि भैया बहुत हो गया, ये तो अब जानबूझ के जो है डीप स्टेट जो है इसको करने चाह रहा है। बट इसका एक और एंगल है कि डीप स्टेट जो है वो अभी आएंगे। तो फिर हम आते हैं अक्टूबर नवंबर में। के दौरान अक्टूबर के महीने में एक न्यूज़ आती है एशिया में कि चाइना लद्दाख से विड्रॉ कर रहा है, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। ये मीडिएशन मॉस्को की हेल्प की वजह से होती है, राइट। और चाइना क्यों विड्रॉ कर रहा है? बिकॉज चाइना को समझ में आया कि अगर ट्रम्प आया तो वो नेशनलिस्ट टैरिफ और ट्रेड वॉर आने वाली है। they were preempting the trade war. They were preempting. And they knew that India is the second largest market with 1.4 billion people, which they cannot afford to lose if they have to fight with America. Absolutely. ठीक है। India is a far more amenable, ally, or you could, not an ally, a neighbor, ठीक है, comparatively to a headstrong Trump, जो उनको दिक्कत देगा। I would like to take a moment here, Navrut bhai, and it is very important for the audience to also understand that why आपने इसको थोड़ा सा डिटेल में क्यों कॉन्टेक्स्ट बनाया और क्यों उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया टुडे। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट, तो आपको क्या हमारे कंट्री में हो रहा है उसको भी समझने में समझ नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सिलसिला कहाँ से चालू हो रहा है। एब्सोल्युटली प्लीज कहिए। सॉरी। सो नाउ सीरिया में इवेंट चालू होते हैं, ठीक है, एंड ये अभी अक्टूबर नवंबर से जैसे ही एक सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड को विफ लगता है कि ट्रम्प निकल रहा है, ओपिनियन पोल्स चेंज होती हैं, द डीप स्टेट ना इट स्टार्ट सेटिंग अप द लेवरेज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प,
आई हैव ऑलवेज बीन ट्वीटिंग अबाउट इट फॉर लॉन्ग कि ये लेवरेज सेट हो रही है, जहाँ पे दो केस इंडिया पे ठोके जाते हैं। एक आपका निखिल गुप्ता पन्नू वाला केस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जहाँ से उसको उठा के जहाँ पे चेकोस्लोवाकिया से उठा के निखिल गुप्ता को एक्सट्राडाइट कर दिया जाता है टुवर्ड यूएसए, राइट। देन जो पन्नू का जो है एलिज्ड हिट था, जो कह रहे कि इंडिया को जो उन्होंने बोला बताओ आपने कैसे मारने की कोशिश करी। दूसरा आपने अडानी, अक्टूबर में अडानी का हिंडनबर्ग का आता है, अडानी का आता है कि अडानी को SEC ने और बोला कि आपने करप्शन के बारे में नहीं बोला है, और ये जून 2024 का है। सो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ना धीरे धीरे लेवरेज सेट करता है राष्ट्रपति के लिए नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या है, वो एक डीप स्टेट का सबसे बड़ा, एंग्लो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा आर्म है जो FBI है। ये क्लॉड डांसे ने जो एक MI6 के एजेंट थे एडगार हूवर के साथ बनाया था, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट पे भी, आपको नीति शास्त्र पर उसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तो अब ये सब चीज़ जो चल रही थी, तो उस दौरान ये तो इंडिया के साथ ये खेल हो रहा था, इंडिया को सेट किया जा रहा था लेवरेज के तौर पे। अब रशिया को सेट करने की बारी थी। रशिया को सेट करने के लिए इन्होंने देखा, इन्होंने सारा असला यूरोप, जैसे आपने बताया यूरोप के जरिए, और खुद बाइडन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड, मिलिट्री एड भिजवा दी। और एक सडनली विद इन फ्यू वीक्स इन द लेट 2024, इन द क्लोजिंग टाइम ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यू सॉ मैसिव पुश फॉर यूक्रेन। ये उर्सुला मैडम तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस वाज गोइंग ऑन, एंड देन सडनली आप देखते हैं कि जो यूक्रेन का हो रहा है, रशिया अपने सारे एसेट्स वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ असाद दो गलती करता है। नंबर 1, ही सेड मुझे वैगनर नहीं चाहिए, वैगनर को निकालो। वैगनर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लड़ रहा होता है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मेरे बंदे खाएंगे, तुम निकालो। तो रशियन MOD कहती ठीक है, वैगनर को हटा देते, आप रिडट को रख लो जो MOD के अंदर काम करता है। तो कहते हैं हमें वो भी नहीं चाहिए, मेरे पास ईरानियंस हैं, शियाज हैं, मोर देन इनफ, आई हैव डेवलप गुड रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, मुझे अरब लीग वापस बुला रही है, तो मुझे अब डर नहीं किसी चीज़ का। बहुत बढ़िया, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपको लगा कि कुछ है नहीं। आप उसके बाद क्या होता है, रशिया ने अपनी सारी फोर्सेस फिर डाइवर्ट कर दी यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए, बिकॉज उनका प्राइमरी थ्रेट तो वो था, यहाँ तो वो खाली अपनी सेकेंडरी बैकअप के लिए आए थे यहाँ पे। ऐसा एक गलती हमारे नेबर में भी किसी ने करा हुआ है, आएंगे हम इसमें बाद में। हाँ अभी आएंगे ठीक है। जिसको जैसे असाद को उठा के मॉस्को ने रख लिया ना अपने पास, हाँ ऐसे उनको भी हमने रख लिया है अभी। हाँ पता है वो। आई नो व्हाट यू टॉक कमिंग ऑन टू। तो ये चीज, अच्छा उसके बाद क्या होता है, देन द बिगिंस द टर्किश ऑफेंसिव। जब वो वहाँ पे रशिया पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है, और इस दौरान पेजर बॉम्बिंग्स के ज़रिए नासरल्ला का एलिमिनेशन होता है सितंबर में। पेजर बॉम्बिंग के ज़रिए मोसाद जो है हाइब्रिड वॉरफेयर यूज़ करके बिल्कुल हिजबुल्लाह की नींव हिला देता है। करेक्ट, ठीक है, द टेस्टिकल अटैक। करेक्ट, राइट। पर गजब का टैक्टिक्स है, मतलब यू एडमायर, यू नो, आई हर्ड अ जोक, यू नो, that Netanyahu called Prime Minister Modi and told that why don't you use pager attack with Pakistan? तो Modi replies कि उनके पास तो पेजर है ही नहीं ना, तो वो यूज़ कैसे करूँगा, उनको टेक्नोलॉजी नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो जोक्स अपार्ट, तो उन्होंने पूरा, तो वन साइड यू हैड ईरान डिमिनिश्ड, यू हैड अमेरिका स्टार्टेड टू पाउंड हुथीज, you had Russia totally engaged into Ukraine, you had Wagner Redat out, you had S-400 out. Syria was set up to be taken, and that is when Turkey stepped in. Absolutely. And Turkey, why I say Turkey is a very pivotal player in the Middle East, not only because they support Muslim Brotherhood, because they represent the Ottoman ideology which is still existent and they want it. So they're one of the moral pillars. They are the moral pillars. They are the, अब हम खलीफा एम्पायर था हमारा, वेस्ट की वजह से गिरा था, तो देखो अर्डोगन के मैप्स देखोगे तो वो कहता है ये भी एरिया मेरा है, ये मुसलमानों की विश्वगुरु है। Right. So they sent that HTS under Jolani, who in a blitzkrieg 4 days time reaches Damascus. जब वो रास्ते में डमास्कस की होता है तो नीचे से इजराइल अपने बंदों को बोलता है तुम भी चलो ऊपर की तरफ,
तो इजराइल जो है माउंट हेरमोन कैप्चर कर लेता है, गोलान हाइट के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से डमास्कस खाली 40 किलोमीटर दूर है, क्वेनेत्रा डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इजराइल कैन नाउ वॉच डमास्कस फ्रॉम दैट हिल, 40 किलोमीटर सीरियन कैपिटल में आर्टिलरी शेल मार के वो डमास्कस पे कर सकता है। और उस हिल ऐसी प्लेस है, करेक्ट, एंड द लेफ्ट साइड को लेबनान है वैली में। सो नाउ इजराइल सिट्स इन द मिडिल वॉचिंग लेबनान एंड सीरिया बोथ for now, right? For now. And Israel is backing Kurds, Syrian Kurds. Jolani is a very known figure because the man, when Bush invaded, he went to Iraq. Yeah. right? He joined Al-Qaeda. No, he joined ISIS, Baghdadi की तरफ, ठीक है? बगदादी से इसका झगड़ा हुआ. He joined Al-Qaeda and Zawahiri in Syria, ठीक है? एंड जवाहिरी ने बोला कि जब जवाहिरी ने बोला कि नहीं हम ज्वाइन करेंगे बगदादी के साथ, तो इसने अपना ग्रुप बना लिया, हयत अल शाम नाम का ग्रुप बनाया जिसको टर्की बैक करता था। बिल्कुल। अब टर्की की मुसीबत ये है कि टर्की को पीकेके नहीं पसंद, वो कर्ड्स नहीं पसंद, बिकॉज वो सारे एसडीएफ जो अमेरिका के साथ फंक्शन कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट ऑयल फील्ड है वो अमेरिकन एरिया में, टर्की को वो नहीं पसंद कि ये साले कर्डिश मिलिशिया जो होते हैं ये हम लोगों को, मतलब ये हमारे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट रही है, हम इसको क्रश करना चाहते हैं। सो टर्की ने अपने रेबेल्स भेजे, उन्होंने डमास्कस में कू करवाया, असद को भगवाया, रशिया हैड टू वेकेट, और इन्होंने अल्टीमेटली अमेरिका पे प्रेशर डाल के कर्ड्स को अपने अंदर मिला लिया, एसडीएफ से एग्रीमेंट साइन करा लिया दैट यू विल डिसबैंड एंड जॉइन द डमास्कस डिफेंस फोर्सेस। और अब जोलानी से हर कोई मिल रहा है, यूएस वाले मिल रहे हैं, यूएन वाले मिल रहे हैं, वो टाई सूट पहन के घूम रहा है, वो मॉस्को जा रहा है, वो कतर जा रहा है, ठीक है, वो हर चीज़ पे बात कर रही है, ये मतलब आई टेररिस्ट टर्न लीडर्स, ठीक है, राइट, द वर्ल्ड इज टर्निंग ऑन इट्स हेड एज क्रेजी इवेंट्स। So Syria falls. Now why this is very essential? Because रशिया के पास 2 बेस हैं यहाँ पे, लताकिया एंड टार्टस, जो खाली करने पड़े। रशिया का जो पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका का जो चार्ट, सहेल का, चार्ट का, जो लीबिया का जो पूरा ऑपरेशन है ना, वो यहाँ से चलता था। सो इफ रशिया, अब नाउ ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था, ट्रम्प ने लेवरेज दैट यू शुड हैव नेवर गॉट इनटू सीरिया, व्लादिमीर यू डिड रॉन्ग। Now it is like negotiating with Turkey and America that you get, you accept for a Ukrainian ceasefire and we will give you the access to these bases so that you can operate. And for America, Russian operation from Libya is still acceptable because that counterbalance is China, जो अफ्रीका में अपनी रेंज पहुंचा रहा है। And in fact, China was using Russian network, Yep. I mean, for Africa. Yep. For Exactly. Africa via the same route. Exactly. So you now see the whole game, कैसे के कैसे पूरा का पूरा इवेंट्स फ्लो करते हुए आ रहे हैं। बट आप ना मुस्लिम ब्रदरहुड को एक छोटी बात समझ के मत, दैट इज वेयर वी कम टू द करंट सिनारियो विच इज हैपनिंग इन द सब, वी स्लोली मिडिल ईस्ट तक, टर्की तक पहुंच गए, ईरान तक पहुंच गए, नाउ वी कमिंग डाउन टू सब। अब यहाँ पे आप याद रखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड 1929 की है, ऑर्गेनाइजेशन है, अनवर सद्दात के हैं, अलकायदा का जो चीफ था बिन लादेन, अमन अल जवाहिरी, जोलानी, ये सारे मुस्लिम ब्रदरहुड आइडियोलॉजी की, ठीक है। इनका है पॉलिटिकल इस्लाम टू इस्टेब्लिश अ कैलिफेट। यहाँ तक कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ ने खुद लिखा है कि ऐसे 10,000 लोग हम फ्रांस में ऑपरेट कर रहे हैं जो यही चाहते हैं, जो बहुत क्लैंडस्टाइनली ऑपरेट कर रहे हैं, और फ्रांस इन पर क्रैकडाउन कर रहा है थ्रू हिजाब बैन्स एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि इनको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली यूरोप के कई कंट्री में वेलकम कर रहे हैं, लेकिन मतलब फ्रांस ने वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ। ये मेरे ब्लॉग है पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड पर, पढ़ सकते हैं। अब इनकी जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया, वो सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में बहुत फेमस है। अब यू हैव टू रिमेंबर कि अफगानिस्तान जो तालिबान है वो देवबंदी आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब देवबंद कहाँ पे, वी डोंट नीड टू से, ठीक है, राइट। साउथ एशिया का है वो तो, ठीक है। पश्तून्स हैं, ट्राइबल्स हैं, करेक्ट। एक ज़माने में हम लोग ट्रेड करते थे, ड्राई फ्रूट का ट्रेड होता था हमारा काबुल तक। Everyone knows that before the partition, dry fruit merchants दिल्ली से लेके काबुल तक ट्रेड करते थे। number of Hindus and Sikhs. Correct, exactly, So, exactly. merchants. ठीक है। तो
तो पश्तून्स जो थे, मतलब जो तालिबान था, दैट यूज्ड टू, दे आर मोर ऑफ अ ट्राइबल काइंड ऑफ अ सोसाइटी। नाउ इन द मीन वाइल जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इनके ये पाकिस्तान में बहुत फेमस नोन है। ये जमात को, ये जमात इस्लामी जो बांग्लादेश में है, वो इनका ऑफशूट है, ठीक है, जो मेजॉरिटी एंटी इंडिया, मतलब हद से एंटी इंडिया। इस दौरान अगस्त में इंडिया, क्योंकि इसका रीजन ये है नवरूप भाई, बिकॉज देयर कोर आइडियोलॉजी इज देवबंदी। ट्रू। सो वेरेवर देयर विल बी देवबंदी कोर आइडियोलॉजी, so their primary enemy would be India, because the Deobandi ideology was created against Hindu or the Indic, ideology. Indic thought. करेक्ट। सो अब ये आता है 5 अगस्त का दिन 2024, जब इंडिया के खिलाफ एक लेवरेज पन्नू में हो रही थी, एक लेवरेज आपकी हो रही थी आपकी अक्टूबर 2024 में अडानी के खिलाफ सेट की गई डीप स्टेट द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। लेकिन उस दौरान आपका 5 अगस्त का दिन आता है जब शेख हसीना का कू होता है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 5 अगस्त का वही दिन है जब आपने राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट, आपने शिलान्यास पूजन किया था। 5 अगस्त का वही दिन है जब आपने 370 हटाया था, आपने उनके सेपरेटिस्ट प्रोजेक्ट को ब्लो दिया था, और इसीलिए अमेरिका ने वो दिन स्पेसिफिकली चुना। डोनाल्ड लू और वो हमारी जो सॉसरेस ऑफ जो विक्टोरिया न्यूलैंड थी, ठीक है, जो डेमोक्रेट्स की, वो जाते थे वहाँ पे, एंड इन्होंने जाके वहाँ पे इंस्टिगेशन किया। और ये तो 6 महीने पहले ही कह रहे थे कि भाई हसीना जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रही है, ये है वो है। रातों रात, मतलब बाय द इवनिंग हसीना, बिकॉज द मिलिट्री का जो उस टाइम पे चीफ था वो हसीना जी का मतलब रिश्तेदार था, सो ही अलाउड हर टू एस्केप विद फ्यू ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड शी लैंडेड अप इन न्यू दिल्ली। सो आई हैव अ थियरी हियर नवरूप भाई। हाँ बोलो। इज दैट आई डू नॉट कंसिडर शेख हसीना एज एन एलाई ऑफ इंडिया, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर आप देखोगे जो शेख हसीना का 15 ईयर्स था, बिल्कुल उलट इसके कि जो बांग्लादेशी कॉमन सिटीजन्स है वो जो समझते हैं, इसके बिल्कुल उलट है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड बंगाली एंड दैट डायलेक्ट ऑफ बंगाली, द कॉमन थॉट among Bangladeshi Muslims is that Sheikh Hasina was a puppet of India. She gave too much freedom to India. She gave all the access of critical these things to India. और उसने एक तरह से बांग्लादेश को इंडिया का एक प्रोविंशियल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, जो रियलिटी से एक्चुअली में बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। बिकॉज शेख हसीना ने बांग्लादेश को इंडिया से उसी के 15 साल में, बांग्लादेश इंडिया से स्ट्रेटेजिकली सबसे ज़्यादा दूर हो गया। शेख हसीना ने इंडिया को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब भीतर खाने। शी डिड नॉट अलाउ बांग्लादेश टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, लाइक वाया सम प्रॉक्सी ISI ग्रुप जैसे उल्फा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के, बिल्कुल वो नहीं करने दिया। लेकिन जो इंडिया की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स है उसको उसने बहुत नुकसान पहुंचा है। एग्जैक्टली। I'll टेक अनदर मिनट। चाइना को उसने ऐसे 2 पोर्ट्स दिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक है। चिटगांग, पायरा पोर्ट एंड चिटगांग पोर्ट, राइट। नंबर 1. Number 2, there were so many critical projects in Bangladesh which were given to China. आपने इंडिया को बैलेंस करनी है, आपको स्ट्रेटेजिक अपनी वो मेंटेन करनी है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। You could get countries which are not hurting the Indian interest, right? Because India is your largest neighbor and you are surrounded by India. And India government ने 15 साल में, पिछले 15 साल में बांग्लादेश को बहुत कुछ दिया है। I mean, you talk about projects, you talk about, in fact, we also gave them a $500 million का credit line, right, to buy defense equipment. True. So हमारे military relationships काफ़ी अच्छे थे ये 15 साल. But strategically, she cut India down. Number 1. Number 2, people don't know all this. Then people doesn't know that Sheikh Hasina built the highest amount of mosques in Bangladesh
वेयर शी एक्चुअली कल्टिवेटेड हर, जो जिन्होंने बाद में जाके उसी को मारा, हाँ, उसको कल्टिवेट उसने वहां पे करा, यू नो, मतलब अपने ही भस्मासुर, मॉडल भस्मासुर। हाँ। तो बिल्कुल मॉडल मॉस्क के नाम पे। हाँ। तो जमात को उसने कुछ नहीं करा, जमात के एलिमेंट्स को उसने कुछ नहीं करा। इसके बाद इसने हिजबुत ताहिर करके एक वहाँ पे और पार्टी है, उसको कुछ नहीं किया। और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे वो बाबाओं की कथा नहीं होती, तो वहाँ पे वाज महफिल करके एक चीज होती है। हाँ। तो वो मतलब वहाँ पे भी 1000 बाबा है, हमसे ज्यादा है, हमसे 3 गुना है। तो मतलब हर मुल्ला बाबा है वहाँ पे, ठीक है, उसकी अलग फॉलोइंग है, वो हुजूर है, तो उसकी अलग कल्ट है। उसको कंट्रोल नहीं किया, तो जमात ने उनको कल्टीवेट किया। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे अभी जो चीज़ें वहाँ से उभर के आ रही है, आई डोंट सी अ रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश इज टू मच अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट। इट एक्चुअली काइंड ऑफ फेवर्स अस बिकॉज इट हमें पता लगता है कि हाँ ये होस्टाइल टेरिटरी है, दैट विनर ऑफ द फसाड ऑफ अ सेकुलर बांग्लादेश इज गॉन। आप हिंदुस्तानियों के सामने किसी से 3 अच्छे स्टेटमेंट दिलवा दो, खुश हो जाएंगे, हिंदुस्तानी इसको यकीन कर लेगा। हाँ। तो हिंदुस्तानियों को सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है। अरे वो लाहौरी नहीं बोलते हैं, साडा यार वो कौन, वो लाहौरी कौन, वो नवाज शरीफ बोलता है ना, बोलता है 4 स्टेटमेंट बोलते, लोग कहता है हाँ साडे साडे, तो बस उसी में हम खुश हो जाते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। तो आई प्रेफर, यू नो, इफ आई सी नवरू भाई, इफ यू आर माई एनिमी एंड इफ यू आर डायरेक्ट अबाउट इट, आई वुड प्रेफर दैट। यस। So, and it not just help India, I think in particular it helps Northeast, it helps West Bengal, और इसका हमें शायद इफेक्ट आगे चल के देखने को भी मिलेगा। True. Because people who are very difficult to wake up, who want to live in Shock their treatment, own poetic la la land, that everything is beautiful, you know, I mean hunky dory. I was growing up in a state where there used to be a organization called Bang Sahitya, you know, और संस्कृत सम्मेलन करके एक होता है, and it is a collaboration between the Bengali literature from both sides, right, Indian side and the Bangladeshi side, right. So I, as a damn teenager, I could guess कि भाई ये गड्ढा खोद रहा है, हाँ पता है, ये तो गड्ढा खोद रहा है, exactly. और लेकिन आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों पूछो, सबको पता है, सबको पता है। तो भाई ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल। सो ये तो, और यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मोदी एंड कंपनी फॉर दिस। एब्सोल्युटली, आई एग्रीड कि भाई वो कुछ भी करे, वो मुंह से कुछ भी बोले, सौगातें मोदी दे दे, हाँ, लेकिन वो आपको अपने दुश्मन दिखा देता है, हाँ, खोल के कि ये है आपकी प्रॉब्लम है, ये देख लेना। तो वो ठीक है, हम भी हम क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, हाँ, बट वो जो फैक्ट है वो है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब ना इन्होंने, हाँ, सो अब बांग्लादेश में पीपल, लोग पूछेंगे यार यूएस ने क्यों किया, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट। सी एवरी कंट्री हैज अ नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, तभी वो वहाँ पे जाके छेड़खानी करता है। यूएस ने क्यों किया, पहला नंबर 1, उनको सेंट मार्टिन पोर्ट चाहिए, आइलैंड, बिकॉज वहाँ से वो बे ऑफ बंगाल पे नज़र रखेंगे, वहाँ से व्हीलर आइलैंड पे इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग, रॉकेट टेस्टिंग पे नज़र होगी, सारा कुछ होगा, ठीक है, उनको बेस मिल जाता है विदाउट गेटिंग ऑफिशियली इनटू इंडिया। म्यांमार की जो पाइपलाइन है चाइना की जो आ रही है पूरी, जब जो ऑयल गैस पाइपलाइन जिसको वो करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। कल को अगर मलाक्का स्ट्रेट ब्लॉक करना है तो उनके लिए वहाँ से ऑपरेट करना आसान होगा। And I'm sure you know that China also has proposed another economic corridor with India, just in line of CPC. I mean China Pakistan economic corridor. वो होगा नहीं, लेकिन वो होगा, वो बात अलग है। अब तो नहीं होगा, अब तो सवाल ही नहीं है। करेक्ट। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे ये बात काफी आगे बढ़ चुकी है। Yes, I know that. So they were planning to run. का MOU भी तो है, we know that. They were trying to run bullet trains from China to via Nepal, India तक लाने के तैयार थे। इंडिया तक लाने के तैयार थे, and they're saying कि boss, let's all the Asian countries, let's do business together. You get your share, I get my share, and let's grow together. हाँ, correct, agree. And break the Western hegemony. हाँ, बिल्कुल। वो कितना legit है, वो कितना legit नहीं है, it is a separate discussion. We'll have this probably some other day. वो बहुत लंबा डिस्कशन, वो लंबा डिस्कशन है, because उसके for and against दोनों में ही arguments हैं, बिल्कुल। So now I want to ask you a question, and then again hear from you, is that how do you see? I see there are 6
very important pillars going forward in the world politics or geopolitics, Navrum bhai. Turkey, obviously it will start with USA, then Israel, then Turkey, then India, then Russia and China. So ये 6 if I am missing somebody, so I think it is USA, Turkey, Israel, India, China and Russia. 6. Perfect. So ये 6 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो ह्यूमैनिटी की फ्यूचर को तय करेंगे. बिल्कुल. और ये 6 डॉट्स में हाउ डू यू सी इंडिया, चाइना, where do they stand? Because if they stand together in this, then the world will move to a particular direction. If they stand opposite to each other, the world will go to another direction. Perfect. Fantastic question. Now let's come to the nerve center. Exactly. The main point. जो आजकल जो चल रहा है. So there is a great game going on in AFPAC region, but इसका genesis पुराना है. I'll just take 1 minute and then I'll immediately bring it down to the current scenario. Sure. You have to understand in one thing कि in this great game अंग्रेज जब गए थे यहाँ से तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पे सोचा, इस्लामिक बफर स्टेट के तौर पे सोचा फॉर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटिश इंडिया. रशियन एम्पायर उस टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस पे वो साउथवर्ड आने की कोशिश कर रहे थे, वो ईरान में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, वो अफगानिस्तान के पामिर तक पहुंच गए थे. उनकी नज़र थी साउथ एशिया पे नज़र थी रशियन एम्पायर की. तो इसीलिए जो एंग्लो अफगान वॉर्स हुई करा, जो वार्म वाटर पोर्ट्स, जो एंग्लो अफगान वॉर्स हुई वो इसीलिए हुई ताकि जो ब्रिटिश जो हैं वो जो फाटा जो खैबर पख्तून तक जाके वहाँ पे उसको वो लोग जो हैं मतलब उसको एक काइंड ऑफ रेजिस्ट कर सके रशियन टेरिटरी को. तो रशिया का जो एम्पायर था वो पामिर्स तक आए और वहाँ पे रशिया का और क्वीन विक्टोरिया की ट्रीटी हुई जहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बाउंड्री है, इस प्लेटो के आगे हम नहीं जाएंगे. पंजदे नाम का एरिया है जो आज तजाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे है और रशिया यहाँ से, रशियन एम्पायर यहाँ से आगे नहीं आएगा, ब्रिटिश इंडिया का ये टेरिटरी होगा. लेकिन ब्रिटिश वर ऑलवेज सस्पिशियस. सो विच इज़ वाई आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने गुलाब सिंह को, जो डोगरा एम्पायर था जनरल जोरावर सिंह के अंदर, जो कश्मीर और तिब्बत का भी उनकी जो मानसरोवर तक का इलाका था, वहाँ को इन्होंने कोऑप्ट किया और इन्होंने वहाँ पे उसके ज़रिए पूरी नज़र रखी गिलगिट बल्तिस्तान पे और उन्होंने उसको लिस्टनिंग पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे. एक्सपीडिशन भेजते थे रशिया को सोवियत मतलब रशियन एम्पायर को और फिर बाद में सोवियत रशिया को देखने के लिए. तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो रहा था माउंटबैटन के दौरान 1947 में, तो गिलगिट स्काउट्स के ज़रिए अगेंस्ट माउंटबैटन्स विशेस ब्रिटेन ने वहाँ पे एक रेबिलियन करवाया वहाँ के लोकल गवर्नर के खिलाफ, बिकॉज वो कहते थे कि हम मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है गिलगिट बल्तिस्तान, हम हिंदू महाराजा की नहीं मानेंगे. ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट किया, उस गवर्नर को रातों रात जेल कर दिया गया और उस बंदे ने, नाम भूल रहा हूँ, विलियम समथिंग नाम था, उस बंदे ने ओपनली ही वर्चुअली टेलीग्राम द पाकिस्तानी एट दैट टाइम कबाइले एंड एवरीवन कि आप आइए और टेक ओवर कर लीजिए. एंड द पाकिस्तानीज इन रिटर्न अलाउड the British to carry on their spying activity against the Soviet Union. अब वेरी फ्यू पीपल हैव रिटन अबाउट इट, जो बहुत कम डिस्कस्ड है हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में और मेन स्ट्रीम पब्लिक मीडिया में. वाई द ब्रिटिश वांटेड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, एम्पायर तो ख़त्म था और सोवियत यूनियन भी अपना बन चुका था, पाकिस्तान अलग कंट्री बन गई थी. तो वाई डू दे नीड गिलगिट बल्तिस्तान एज लिस्टनिंग पोस्ट? बिकॉज as per the records, as per the geological survey records of Britain and later even by China and the Soviet Union, Aksai Chin area is full of uranium and thorium. And there was a nuclear race going on between Soviet Union and America कि हमें ये लेना है, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करना है, हमें न्यूक्लियर रेस में अमेरिका से आगे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है, बड़ी यील्ड्स बनानी है. And they wanted to mine that area. So that led to Stalin
collaborating with Mao Yeah. and telling Mao to build a highway from Shanjing all the way to into Aksai Chin. The labor, the manpower, everything was provided by Soviet Union at that time into into a part of Indian, not supposed, into a part of Indian territory of Aksai Chin at that time. Absolutely. Right? Absolutely. And the British were watching from Pak occupied Gilgit Baltistan. And और उनके YouTube प्लेन्स जाते थे, अमेरिका की लिस्निंग पोस्ट होती थी, ये सब चीज़ चलती थी, राइट? एंड एज लक वुड हैव इट 1950-60s में अल्टीमेटली आते आते इंडिया को पता चला इस एक्टिविटीज़ का 57 में, एंड कि जब हमने अपनी फॉर्मल मूवमेंट करी, वी रियलाइज कि द PLA इज हियर, ठीक है, एंड बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट, एंड देन फाइनली हमने पंचशील पहले साइन किया और उसके बाद 1962 में वॉर हुई। एग्जैक्टली। बट उससे पहले एक चीज़ और, दलाई लामा का भी तिब्बत से इंडिया आए, so that became another friction point. Correct. And it was such a beautiful strategic move by the West. They kind of solidify the animosity between India. Absolutely. Plus, the the Anglo-American policy of Anglo-Saxon alliance have all never wanted any communist power to come to Persian Gulf, because Persian Gulf, यही क्वीन विक्टोरिया की भी पॉलिसी थी कि भाई हमारे बेसिस वहाँ हैं, हमारा ऑयल वहाँ है। FDRs ने डील करी थी इब्न साउद के साथ, वो वेसल पे, अगर आपको याद होगा 1945 में जस्ट आफ्टर याल्टा। एक सेकंड के लिए नजरूब भाई सोच के देखिए, आज अगर ईरान मुल्ला रिजिम के अंदर नहीं होता, और अगर वहाँ पे किसी तरीके की एक मॉडर्न रिजिम होती, इवन इफ इट इज़ अ कम्युनिस्ट रिजिम, तो क्या होता? आज पूरा मिडिल ईस्ट अलग होता। कमाल की बात यह है, CIA का डिक्लासिफाइड फाइल है इस्लाम इन ईरान, आपको मिलेगा। हाँ, उसमें बड़े अच्छे तरीके से BBC के किसी लिंक में भी आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जो खोमेनी था वो पेरिस में बैठ के नेगोशिएट कर रहा था CIA के साथ, ठीक, तो सूट पहनता था वो, ठीक है, राइट। फिर वो पेरिस से उसको फ्लाई डाउन किया जाता है, रिवोल्ट होता है वहाँ पे, एम्बेसी का पूरा शो डाउन होता है वहाँ पे सारा, जिसका आर्गो मूवी भी बनी। कुछ दिनों में पता नहीं हमारे यूनुस साहब भी ऐसे ही पहन ले कुछ। राइट। तो ये चीज़ होती है। बट देन CIA उनको, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, CIA बोलती है कि टुडे पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको जो है आप डिसमेंटल करो, पूरी लिस्ट ये मेंबर है, और खोमेनी 1 by 1 सबको छुड़ा देता है। इस दौरान अमेरिका प्रेसिडेंट जिमी कार्टर प्रो सोवियत रिजीम को अफगानिस्तान में के खिलाफ रिवोल्ट इनिशिएट करता है। द पॉपुलर नैरेटिव इज कि सोवियत पहले घुसे और अमेरिकी बाद में एक अफगान जिहाद करी। इट्स रिवर्स। कार्टर का अगर डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बोलोगे, वो बताते हैं हमने पहले वहाँ पे उंगली करी, हमने तभी वो चिढ़ के वो आए घुस के अंदर, फिर हमने उनको वहाँ पे अफगान जिहाद का उनके लिए सौगात रखी, ठीक है। इस सौगात से जैसे कि सोवियत यूनियन यहाँ घुसा 79 में, और उसी टाइम ईरानियन रेवोल्यूशन हो रही थी, तो खोमेनी कहता है आई डू नॉट ट्रस्ट इज एथिस्ट कम्युनिस्ट इन मॉस्को। इसीलिए रशियंस ने बोला कि 1929 की जो हमारी ट्रीटी है कि ईरान को जो है कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर, ईरान में हमारे खिलाफ कोई, बिकॉज रशियन एम्पायर ऑलमोस्ट नीचे तक आता था कि हमारे खिलाफ कोई आएगा नहीं नीचे। तो खोमेनी सेड नथिंग डूइंग, आई एम नॉट साइनिंग दैट एग्रीमेंट, वी आर नॉट रिन्यूइंग। सो नजरूब भाई, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या ऐसा ही कुछ अभी हमारे साथ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई कम टू द रीसेंट पॉइंट, ठीक है। यू कम टू अफगानिस्तान, तालिबान पावर में आता है, तालिबान चला जाता है। अब नाउ अफगान, यू नो, लाइक आई वाज वन ऑफ few days talking to my friend and I was explaining, you know, Taliban, how do you remember this? I said, you know, like it's crazy. I myself go crazy that ये इसका ये फैक्शन है, उसका वो फैक्शन है तालिबान का। तो he said what? I said, no, I'll explain your viewers very quickly what Afghan is. Sure. One is Taliban. The Taliban का जो मेन फैक्शन है उसमें दो बड़े धड़े हैं।
एक है हक्कानी नेटवर्क, सिराजुद्दीन हक्कानी, जो जलाल हक्कानी से आता है, जो पश्तून हैं लेकिन वो पेशावर खैबर पख्तून से आते हैं, ISI बैक्ट हैं। और दूसरा है आपका अखुंदजादा, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो क्वेटा शूरा से आता है, कांधार से, ठीक है, राइट। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में टसल है। अब अखुंदजादा जो है, ही हैज़ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान एंड इंडिया, ठीक है। अब मतलब दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर विलिंग टू ट्रेड विद इंडिया। हम उनके साथ, हम उनको वीट देते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। अब तो डिप्लोमेटिक आउटरीच भी चालू हो चुकी है। करेक्ट, और होना भी चाहिए। एंड तालिबान, अगर आपके कंट्री में पाकिस्तान की एम्बेसी हो सकती है, करेक्ट, तो तालिबान की क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्टली। एंड तालिबान, द बेस्ट पार्ट, तालिबान ने भी स्टेटमेंट जारी करी है पहलगाम को कंडेम करते हुए। आई एम लाइक वाओ, उनके लोगों ने करा, लाइक वाह, करेक्ट। अच्छा, अब तालिबान के अंदर एक और फैक्शन है, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। ये वो जो ज़रबे अज़म नाम का जो ऑपरेशन था, जो मुशर्रफ के दौरान लॉन्च हुए थे, लाल मॉस्क के बाद जो मैसेकर हुआ था, फेल हो गया था, ये वहाँ से चालू हुआ था। जनरल कयानी की सारी जो ये पूरी पॉलिसी थी, वो औंधे मुँह गिरी थी, जो फाटा और इन एरिया में ब्लो अप था। अब वहाँ पे ISKP भी आ गया, इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस। ये वो बंदे हैं जो जब अमेरिका ने और सबने बॉम्बिंग चालू करी आईसिस को मिटाने के लिए, तो इन्होंने अपने ही एरिया से वाया टर्की उनको निकालते हुए ये अल्टीमेटली अफगानिस्तान में आ गए, बॉर्डर लाइन। मैं थोड़ा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ नजरुब भाई कि अगर कोई सीरियसली जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है और जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट है या फॉलो करना चाहता है, then they will realize that there are always two shades of every concept that they created in last 50 years or 70, 80 years. Hegelian dialectic. Absolutely. Thesis and antithesis. Absolutely. First we create the thesis, then we create the antithesis, and then we justify for why we need to go into it. And that is why the common people, they cannot identify the real evil. This is exactly what I've explained in my book. World War II में क्या हुआ, कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था, सब था. इट वॉज ऑल a setup where first one particular side you end up funding the Nazi war machine with IG Farben, Standard Oil Company. On the other side, when the Nazis gets too strong, you start funding the Allied forces with Lend-Lease Act. Okay? So Soviet Allied forces, and that makes basically थीसिस भी आपका, एंटी थीसिस भी आपका, तो बाद में सब लेके भी चले गए, बाकी सब लेके चले गए. सारा टेक्नोलॉजी आपका जो वीडियो था जिसमें राइट लाइंस के बारे में बात हुआ, सारा वही था. बिल्कुल. सो कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, अब यहाँ पे क्या, यहाँ अखुंदजादा और हक्कानी में इनमें आपस में जंग छिड़ गई है. ठीक है. नाउ दे आर फाइटिंग अमंग ईच अदर. एंड पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ, बड़ा फेमस, बलोचिस्तान में कुछ दिन पहले, जिसको पाकिस्तानी यूज़ करते हैं एज अ जस्टिफिकेशन फॉर पहलगाम का जो हमला, जो 2 दिन पहले 22 तारीख को इंडिया में कराया इन्होंने. अब ये जो हमला हुआ, जो जाफर एक्सप्रेस था, वो करवाया BLA ने. अब पाकिस्तान का फेवरेट मॉनिकर है, मंकी है कि BLA तो इंडिया, खत्म. BLA जैसे हमें लगता है कि मतलब कश्मीर है तो पाकिस्तान वो कहते हैं BLA तो इंडिया का कोई प्रूफ नहीं है. तो BLA का कोई प्रूफ नहीं है इंडिया का, भाई तो इंडिया है. हाँ. सिमिलरली कुछ दिनों बाद शायद बांग्लादेश से कोई ऐसी चीज हो जाए, बिल्कुल, तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो बांग्लादेश है, जमात है. और बांग्लादेश में कुछ होता है तो ये बोलते भाई ये तो इंडिया. बिल्कुल. सो नाउ यू सी द पैटर्न्स. तो अब वहाँ पे TTP भी हमले कर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, वहाँ BLA भी हमले कर रही है. दैट एरिया ऑफ बलोचिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल. चाइनीज इंजीनियर्स पर आए दिन हमले. हालत ये हो चुकी है कि PLA ने अपनी मर्सनरीज और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करी है टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंस्टॉलेशन. एब्सोल्युटली राइट. वो जो ग्वादर का पूरा ऑलमोस्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर देम टू वॉक. एग्जैक्टली. अब ये जो ज्योग्राफी है ईरान की, जो सडनली आप अमेरिका का एक एजेंडा देख रहे हो, नेतन्याहू का एजेंडा देख रहे हो कि ईरान पे मारो, ईरान पे मारो, ईरान पे मारो. क्यों? क्योंकि ईरान ने 2021 में वही गलती करी जो एंग्लो सैक्सन नहीं चाहते, कि उसने 25 साल के लिए $400 बिलियन का जाके प्रोजेक्ट साइन कर लिया और BRI के लिए साइन अप कर लिया चाइनीज़ के साथ कि मैं पोर्ट्स भी दूंगा, मैं मिलिट्री भी दूंगा, मैं इंटेलिजेंस भी करूंगा. बिकॉज ईरान वो पर्शियन गल्फ पे
गल्फ कोस्ट पे, चाहे वो ग्रेट गेम से लेके अभी तक, दे नेवर वांटेड एनी कम्युनिस्ट पावर टू रीच हियर। उनके बेसिस है, उनका ऑयल रूट्स है, वो नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। तो चाहे वो छावार के पास चाइनीज़ एक्सेस हो, चाहे वो ग्वादर हो जो पर्शियन गल्फ के कोने पे खुलता है वर्चुअली, बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। So which is why you will see chaos rise in this region substantially in the Pakistan region. तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान को गोड करना कि जा एक फ्यूटाइल वॉर में लड़, ठीक है, इंडिया के साथ या किसी या ईरान के साथ, और somehow they would also try to involve China into this. करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो इंडिया चाइना रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे, फिर तो पूरा गेम ओवर है, पूरा गेम ओवर है। हाँ। और अगर चाइना दूर रहता है और पाकिस्तान मरता है तो चाइनीज प्रोजेक्ट डिरेल हो जाएंगे। सो इधर वे द अमेरिकन विल हैव अ विक्ट्री, विच इज व्हाई यू आर सीइंग द पेंटागन गो गा गा गा, मारो 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 मारो, क्या चाहिए आपको बताओ, हम आपको समर्थन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये साले गोरे इतने हमारे कब से दोस्त बन गए। एग्जैक्टली वो ग्रेट गेम जो आपको टुकड़े करके गए और आपके वो आपके आज हितैषी बन रहे हैं और उनके एडवाइजर आके पूरी इंटरेक्ट। मार क्यों नहीं रहे हो? क्या मार क्यों नहीं रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, मतलब भाई आप इजराइल की तरह ठोक दो जाके। हाँ ठोक दो। इजराइल में और सिचुएशन में बहुत फर्क है टू ऑल ऑफ यू। वो हमास के खिलाफ लड़ रहा था यार, एक टेरर ग्रुप है, ये स्टेट है। हमास में कितने 10,000 15,000 50,000 लोग। करेक्ट। यहाँ तो डिफरेंट, यहाँ एक यहाँ it's not about nuclear. I'll tell you what, I mean, I see the evil in the region. The real evil in the region is Pakistan army. Yep, absolutely, मैं उसी पे आऊँगा। And Pakistan army is actually not Pakistan army. इसकी नाम is I mean deceptive. वो जो नाम है और वो जो एक्चुअली में है एंटिटी, उनमें फर्क है। I read a very famous dialogue in Homeland. Yeah. Pakistan is not a state. It is an acronym. Absolutely, it is a hired gun. It is a hired gun, right? So and Pakistan army is basically a mercenary group. Yep. Who are holding back the entire region. And I'll tell you how the Sharifs are also committing a blunder here. Sharifs got a very chaotic, state, and destroyed economy, a country dying for peace, youths were there, the youths were seeking a better life. They could see India is progressing very fast. यार इंडिया के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है. Nobody, when they go to, Middle Eastern countries and all, Indians are all there in the top positions. बांग्लादेशी वहाँ पे टॉयलेट साफ कर रहे हैं, पाकिस्तानी टॉयलेट साफ करने से ज़्यादा एक लेवल ऊपर की जॉब कर रहा है, वो ड्राइवरी कर रहा है और कुछ ऐसे छोटे मोटे नौकरियाँ कर रहा है. ऊपर नहीं बैठा कोई, और ना ही आगे नए फ्यूचर में हो भी सकता है. सो दे वर ट्राइंग to change that status quo. The youth of Pakistan, they were trying to change their status quo. If I see the entity which is holding them back, it is not their political system. अगर आप it is their military brass. Only military brass. Only military brass. And it is. And why, Dabru bhai, just give me a minute. And why I believe that Modi has already taken the action, the correct action against them, because if it is actually implemented, I do not know about the implementation part because this government is funny when it comes to implementation. So ये CAA लेके आते यार, NRC नहीं आता. मतलब आपने किसी को मटन दे दिया खाने को, बट दांत ही नहीं दिए चबाने को, तो भाई वो कैसे करेगा? Exactly. So हमारे वेजिटेरियन दोस्त नाराज हो जाएंगे इससे. That's the I think example came to my mind. But सिमिलरली अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करा तो आप एक्चुअल विलेन को हर्ट करोगे जहां उनको हर्ट होनी चाहिए. नवरूप भाई, पाकिस्तान की तकरीबन 30-35% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एग्रीकल्चर के थ्रू. ये कहने को पाकिस्तानियों का है, बट इसका असली जो सेठ है, धन्ना सेठ, वो पाकिस्तानी मिलिट्री है. एब्सोल्युटली. वो हिंदुस्तानियों को हिंदू बनिया बोलते हैं. बिल्कुल. बट पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनिया तो वही है. बिल्कुल. आपको मैं इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, पाकिस्तानी आर्मी वर्चुअली कंट्रोल्स ऑल इंडस्ट्रीज. यस. दे ओन ऑल फार्मलैंड्स. यस. दे ओन द मैक्सिमम लैंड. करेक्ट. These generals have fat businesses, offshore accounts. Correct. By the way, वहाँ पे भी जुडिशियरी के खिलाफ काफी चीजें हुई है. हाँ. Because अगर किसी को अपना खुला
राज चलानी है। General Iftikhar Chaudhary was a famous one who was the one who stood up against the military as well. और फिर उसके साथ क्या हुआ था, लॉयर स्ट्राइक करवा दी गई थी उसके खिलाफ। तो ओलिगार्की को ना जुडिशियरी पसंद नहीं नहीं no, that's a very different topic. तो पाकिस्तानी आर्मी controls the whole, like it's, like they have kind of put hostage. They've kept the Pakistani population as hostage. एक तो पाकिस्तान की जितनी एलिट क्लास है, मिडिल क्लास है, वो निकल चुकी है. They have migrated. ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है. तो कोई लंदन निकल गया, कोई यूएस निकल गया, कोई यूरोप निकल गया, कोई दुबई में रह रहा है. तो अब जो रह गया जो जा नहीं सकता है, ठीक है, हेल्पलेस है. एस्पिरेशंस उसके भी हैं. इन्फ्लेशन हाई है, तेल की कमी है, खाने पीने के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर में दिक्कत है, वाटर क्राइसिस रेगुलर होता है, कभी मतलब इट्स इन अ बैड स्टेट. बट द पाकिस्तानी मिलिट्री, Pakistan state was actually, I think the Pakistani military was facing the biggest crisis in its history in last 2 years after Imran Khan's ouster. But Nabul, who rescued them? आप बताओ. Who rescued them? Who felicited their loans? Yes, I'm coming to that. कैसे आया? I'm coming to that. अच्छा. Here I take you to General Bajwa. General Bajwa, when he came into thing, he said कि मुझे इंडिया से रीसेट चाहिए. ठीक है, मुझे वेस्ट से भी रीसेट चाहिए. Obviously we don't buy their intentions. We let them say what they want to. But just for the sake of the audience कि क्या था, what was the purpose? Bajwa actually tried to create a system which is functional. Yes, Bajwa said मुझे इंडिया से रीसेट चाहिए जहाँ हम कश्मीर को अगर साइड पे पड़ा तो पड़े रहने दें, हम ट्रेड शुरू करते हैं. बिकॉज वी कैन गेट थिंग्स फ्रॉम इंडिया इन अ मच सस्ता वे में आ सकता है. और इन्फ्लेशन कैन गो डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बेटर करे. हमारे क्राइसिस, वी डोंट नीड टू देन अप्रोच फॉर सो मेनी लोन्स एंड भीख मांगो कभी. करेक्ट, ठीक है. बट क्या होता है, इमरान खान अगेन अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट. लेकिन बाजवा को वेस्ट से भी रीसेट चाहिए. बाजवा को वेस्ट से इसलिए रीसेट चाहिए बिकॉज बाजवा को लगता है कि भैया मेरे वेस्ट में उनके इंटरेस्ट हैं, पैसा है. बट नवरू भाई, डू यू बिलीव वेस्ट विल एवर अलाउ पाकिस्तान टू बी अ सेंसिबल स्टेट? नो, they will never allow. No. Because their entire purpose in Asia will get defeated if that happens. Now, when Pulwama happened, General Asim Munir was the DG ISI. सेम आर्मी चीफ विच इज़ टुडे, जिसने 3 दिन पहले दिया और हिंदुओं को कॉल आउट करके ओपनली कम्यूनल पिच करी और कहा कश्मीर हमारा रेगुलर वेना, हम हिंदुओं को सिखाएंगे कि क्या होता है. ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, 2 नेशन थ्योरी रिफॉर्म किया उसने. ये 50 मिलियन में बिक जाएगा. हाँ, मैं समझ गया. आसिफ मुनीर जैसे बंदे यार, रावलपिंडी मतलब 10 मिलियन में बिक जाते हैं वो. हाँ, मुझे पता है. तो अब बॉस की बीवी के साथ तो वो इश्क लगा रहा था. Anyways, ठीक है, that is a different issue altogether. So General Bajwa wanted to have that reset. और इस दौरान हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी वाले एडवाइजर थे जी डोवल साहब, he as the popular public source information says, he had a lot of back channel talks with General Bajwa, the army colleague, in कभी दुबई, कभी लंदन, कभी बैंकॉक. And we came to a ceasefire in 2001 after Pulwama. ठीक है, It was one of the most prolonged ceasefire जो चल पाई 2001 से genuinely followed from 2001 to 2024-2025 till this Munir chap came into power. ठीक है, और de-escalation channels बन गए थे कि आपस में कुछ भी दिक्कत होगी तो 2 आर्मीज और 2 NSS के बीच में de-escalation कैसे होगा. ठीक है, so we had a system working between the two countries to make sure कि 2019 का जो पुलवामा और बालाकोट था वो कभी दोबारा रिपीट ना हो. देखो, हमारे लिए मुनीर इज गुड न्यूज अगर आप देखोगे. हाँ, आई एग्री. लेकिन अब यहाँ पे चालू होता है अमेरिका. क्योंकि इमरान खान, जिसको जो उनकी जो जेन जी है, जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यूथिया जिसको बोलते हैं वो लोग, ठीक है. ठीक है, बिकॉज इफ यू वॉच द पाकिस्तानी चैनल यू गेट टू नो कि क्या लिंगो इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, तो
वहाँ पे एक चिट्ठी आती है डोनाल्ड लू की जो दिखाता है सिफर जिसको वो कहते हैं, जिसको इमरान खान ने दिखाया था नेशनल असेंबली में कि देखो दे वांट अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। उसने तो खुल के बताया। हाँ, उसने खुल के बताया। तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज होता है और इमरान खान महाशय जो चले जाते हैं, जिस दिन यूक्रेन का इन्वेजन होता है वो मॉस्को में लैंड करते कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल डे टू अराइव हियर, ठीक है। एंड उसे पता ही नहीं, अमेरिकन विड बी लाइक अच्छा ठीक है देखते हैं, ठीक है वंडरफुल प्लेस ना मॉस्को, बताते हैं तुझे। कह रहा है मॉस्को को बोल रहा है मुझे तेल चाहिए, गैस चाहिए। जब यूएस सैंक्शन लगा रहा है इंडिया को मिल रहा है तो मैं हाँ मैं ये उसका यही लॉजिक था कि इंडिया सस्ता तेल सकता, मैं क्यों नहीं ले सकता। इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अपना सकता तो मैं क्यों नहीं अपना सकता। सो ही वॉज ट्राइंग टू बी अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट विच रैन कॉन्ट्री टू द आर्मी एंड जनरल बाजवा हु वॉज सीकिंग अ रीसेट विद द वेस्ट। और इसीलिए वहाँ पे औस्तर होता है उसका। 9 मई के हादसा होता है, दंगे होते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है, बुशरा बीबी जेल में जाती है। तो पाकिस्तान एज अ स्टेट एंड देन शरीफों को लंदन में अग्रीमेंट होता है, नवाज शरीफ वापस आता है और शहबाज शरीफ को यहाँ पे कहा जाता है और बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की गेम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद सेट करके रखी। उसके बाद जनरल मुनीर आते हैं और ये ड्रामा चालू होता है, ये सारा का सारा। इसको तो एक मतलब दाने दाने पे तरसा दिया था इन्होंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नेशनलिस्ट था, ये नेशनलिस्ट था, ये जेन्युइनली नेशनलिस्ट था, करेक्ट, तभी तो पैसे नहीं दिए। करेक्ट, ठीक है। तो अब जो जनरल बाजवा का जो वो रीसेट था जो हमारा चल रहा था, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी डोवल इंडिया एंड पाकिस्तान की जनरल बाजवा के दौरान से, वो ख़त्म हो गई विद दिस अटैक। पुलवामा सॉरी फॉर ये पहलगाम फॉर ऑल सडन रीजंस। Now I'll come to the crux पहलगाम पे आते हैं, ठीक है। Yeah, let's talk about it. Let's. And my next question and the final question to you would be, how you prefer an Indian response to this particular situation? Correct. Yeah. Okay. Correct. Okay. अब जो पहलगाम का जो हादसा हुआ, ये आपकी जो बाइसरन वैली है, ये आती है व्हेन यू गो टुवर्ड्स पहलगाम का जो अमरनाथ बेस है उस रास्ते पे। ये 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक है मेन हाईवे से, जहाँ से पुनीस पे आप जाते हो। इट्स नॉट अ मोटरेबल रोड, ठीक है। मड रास्ते में मड ट्रैक भी है, ब्यूटीफुल लोकेशन, लोग कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का, ठीक है। पहलगाम है बहुत खूबसूरत। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस वैली है वो है बेताब वैली, जहाँ दैट्स नॉन बिकॉज ऑफ द बेताब मूवी वाज शॉट ओवर देयर, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ वो ना वो हाईवे से सटी हुई है बिल्कुल मेन हाईवे से, कारगिल वाला जो हाईवे, जो नॉट कारगिल जो पहलगाम वाला हाईवे, उससे सटी हुई है। सो इट इजीली एक्सेसिबल, ग्राउंड पे है, ठीक है। तो वहाँ अमूमन पब्लिक वहाँ जाती है। सुनने में आया कि इस वैली को सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मैंने भी पढ़ा कि बिना पूछे कुछ। देन टुडे आज अमर उजाला में छपा है, कई जो पीड़ित हैं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया है कि पौनी वाले छोड़ के भाग गए। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस को 3 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, या फायरिंग चल रही थी। वी हैव रेड इट इन द न्यूज़, दैट्स इट, इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। देन जो आई विटनेसेस कहते हैं कि जो आतंकवादी थे उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। साइड पे हो जाओ, और फिर हिंदुओं जितने भी हिंदू मेल्स थे उनके सर में वन बाय वन पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी, करेक्ट, ठीक है, किसी को नहीं बख्शा। और जब एक लेडी ने बोला कि आपने मेरे पति को मार दिया तो आप मुझे और मेरे बच्चे को भी मारते, तो उनको बोला कि जाके मोदी को बोलता। So how, Navrup bhai, you see the incident, timing of it in context of the geopolitical scenario? Yes, and India's response. And how should India respond? Perfect. Now, geopolitically, this is the most pivotal time India is facing. And to give a context, India at this minute is facing, challenges and opportunities both. Correct, I agree. ठीक है, opportunities, challenges कि वर्ल्ड में ट्रेड वॉर चल रहा है,
The Trump administration is going mad, imposing tariffs on everyone. China पे 150%, इस पे 50%, इस पे 10%, अब इंडिया पे 10% पे ले आए हैं. And India, and you know, as Secretary Scott Bessent said, India is in the top priority list of America to get it down to 10%. And India is also trying to reciprocate by giving them the sweeteners. ठीक है कि हम ये टैरिफ घटा देंगे, एलोन मस्क के टेस्ला को अप्रूवल दे देंगे, स्टालिन को अप्रूवल दे देंगे. ठीक है, we are ready to work with them, right? तो हमारे लिए इट्स अ चैलेंजिंग टाइम. देखो, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग इन अ टर्मोइल, पूरा टर्मोइल चल रहा है. सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, बाइफर्केशन हो रही है. अमेरिका कहता है मैं चाइना से दवाई नहीं लूँगा, मैं चाइना से सेमीकंडक्टर पे लगाऊंगा, मैं दवाइयों पे लगाऊंगा. इंडिया की सप्लाई चेन अगर आप देखोगे तो ईवीज़ में अगर मैग्नेटिक जो होती हैं वो चाइना से आती हैं. हमारी जो एपीआई के केमिकल्स या 70% वो चाइना से आते हैं. हमारी जो सोलर पैनल्स बनते हैं उसका 45% रॉ मटेरियल चाइना से आता है. प्रॉब्लम. And I think I have a couple of clients in that field. So वो मुझे बताते हैं कि जो हमारा BMS जो है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, which is basically the brain of the battery, the reason why a battery doesn't explode, उसका 85% तो चाइना से आता है. So another point है, even if you, let's assume you supply medicines, you are the pharmacy of the world. India supplies 40% of generic pharma drugs to America. बट उस 40% जो आप सप्लाई करते हो उसका 70% एपीआई चाइना से आता है. सो सिमिलरली आप सोलर पैनल से सप्लाई करते हो. अब अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम, कंबोडिया पे 3,500% का टैरिफ लगा दिया इनके सोलर पैनल्स पे. तो इंडियन सोलर पैनल की चांदी हो गई, बिकॉज दे विल बी सेंडिंग विद 10% टैरिफ्स, दे विल बी सेंडिंग विद 3,000% टैरिफ. और थोड़ा अपना मार्जिन लगा. आई थिंक नवरूप भाई, यू नो, इफ आई बीइंग अ प्रैग्मेटिक हियर, think like a businessman, India having a functional relationship with both China and USA suits both China and USA. Absolutely. Because India is the bridge, yes, through which they both can do business indirectly. रशिया के साथ भी यही हुआ. करेक्ट. वेयर रशियन ऑयल यूज्ड टू कम टू इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, गेट रिफाइंड एंड गो टू ईयू एंड यूरोप. और उन्होंने कहा था कि आपने थोड़ा अपना तेल मिला दिया तो ये रशियन तेल नहीं है. सही. द कंपनी मेड अ प्रॉफिट, द गवर्नमेंट मेड अ विंडफॉल टैक्स आउट ऑफ इट. नो डाउट. हमारा मोटे भाई ने भी बहुत कमाया है. बहुत बढ़िया डील चली है. तो अब हमारी फार्मा और बाकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अब उनकी बारी है. चाइना से सस्ता लो, अपना मार्जिन लगाओ, अमेरिका को बेचो. But okay, so my closing statement, Navru bhai. Before that. Please. So now this trade war provides an opportunity for India to grow big. True. Challenge क्या है? If we get dragged into a big escalation or a war with Pakistan, we will get caught up and our economy will get dragged. And it doesn't suit them also. It doesn't suit them. So now, and if we take too much of American side, we end up running risk with Chinese supply chain, जो उसके बिना हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती. If we cozy up too much with Americans, ठीक है, और if we cozy too much with China, the Americans would, you know, could hit us with tariffs, could hit us with our service industry, IT export, the middle class, everything. एक rip-on effect शुरू हो जाएगा. ठीक है. Okay. So these are the challenges, and then the world is moving towards a new revolution of artificial intelligence and technology. This point I want to make it to your listeners and your viewers. Sure. ठीक है. The American tech is now facing a lot of huge competition from China, चाहे वो semiconductors में हो. Huawei ने अपने chips बना लिए हैं, DeepSeek AI आ गया है, Manus AI आ गया है. They're upgrading it fabulously. Yeah. मतलब आप you just need to read the commentary which is coming out. मतलब the Chinese, unlike the Soviet Union, is giving America a run for their money. Obviously. Even in the trade war, Trump is being made to bend because Xi Jinping has said कि भैया till you take down the tariffs, I am not going to negotiate with you because I am the factory. Without me, you will starve out of our consumer products. Amazon sources 70% from China. Where will you store? You overnight you cannot do a replacement. The American consumers will suffer. Inflation होगा. So the world is in a flux. At the same time, India में पहलगाम का हमला होता है, critical moment पे,
where India is seeking to take advantage of this trade war and emerge as a winner, as a part of a multipolar world along with Russia and other middle powers like GCC countries who want to trade both with China and American blocs. Right? रशिया भी कर रहा है, करने वो नासा के साथ में करता है, तेल भी बेचता है, यूरेनियम भी देता है. इंडिया भी कर रहा है चाइना अमेरिका के साथ. सऊदी अरेबिया भी बड़ा पेट्रो डॉलर स्कीम भी रन कर रहा है, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, युआन में भी कर रहा है. सो दीज आर द मिडिल पावर विच आर ट्राइंग टू ट्रेड. अब उसमें इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाकिस्तान की प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए. एब्सोल्युटली, विच इज द फाइनल पार्ट. सी यू विल हैव टू अप्रोच asymmetric and hybrid warfare. Indus Water Treaty is one. That's a fabulous tool. I will dry you up. And that's a very courageous step. Yeah. No doubt. And you know, this has happened once. People do not realize. 1948 में जब कबाइलों ने हमला किया था, कश्मीर का चल रहा था, नेहरू ने रावी का पानी रोक दिया. I know that, yeah. दिल्ली ठीक है, जो हुआ था. और within 30 days लाहौर में people started feeling pinch. और वो सारा अभी तो गर्मी आने दो. एंड ऐसा नहीं है. अगर आप मेरा आर्टिकल नीति शास्त्र पे पढ़ेंगे उसमें डॉक्यूमेंटेड 19 में 20 में 21 में किशन गंगा, बागलिहार, ये वो चनाब, झेलम, वी आर बिल्डिंग अप फैसिलिटीज टू अलाउ एंड टू टैप द वाटर, जनरेट मोर. आई फील वन इशू विथ आवर सिस्टम. अभी तक हमने गवर्नमेंट की तारीफ करी है बिकॉज दे डिजर्व इट. But now let us also mention about the concern area. The concern area with our system, it is not unique to Modi government. It has been an issue with the system, which is continuing in the in the current government also, which is the implementation of the hard measures. हमने एक step बहुत तगड़ा लिया है. मतलब अगर इस step को किसी ने implement कर दिया तो ये they will be on their toes. But क्या ये implement हो पाएगा? Perfect. Implementation, it may take months, it will take years. There is not an over. It's not a household tap ना कि आपने बंद किया और रिवर बंद हो गई. But Nagru bhai, even now we have capacity. Yes. Why we to divert? No, not just to divert. To hold also. Yes. If not to the substantial amount, but to an amount which will cause them pain. Really, slow down the flow. And the flow of water. It will cause them serious pain. Serious pain, absolutely. And when you are releasing and when you are holding, decides everything. Because if you are holding when they need it, and if you are releasing when they don't need it, then it changes everything. Totally. And this time I believe, escalation अगर retaliation India का आता है जो any day आ सकता है, could be any time, ठीक है. It will be bigger than the last time. I think so. But the only problem. But don't you think? I mean, we'll play by their. I mean, script then. I mean, the script of our so-called enemies, where they're trying to lure us to a trap. Well, it could be a trap. Which is why I say the government is walking a very, very precarious path this time. आप देखो यार, और सारे कमीनों को देखो, कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है. इजराइल तो चलो ठीक है, I mean उसको आप फिर भी थोड़ा बहुत मान लो कि वो आपके साइड आधा भी है. हाँ. आपको यूएस सपोर्ट कर रहा है जैसे आप उसका भाई हो, सगा भाई. फ्रांस, रशिया तो आपके सबसे बड़े आर्म सेलर हैं. बाकी छोड़ दो सर, आप इंडिया में देखो आपको कौन कौन सपोर्ट. ऑपोजिशन पूरी खड़ी है. ऑपोजिशन आपको ऐसे ही सपोर्ट कर रही है. मार दो यार, कि बोल रहे हम तो बिल्कुल खड़े हैं जी आपके साथ. क्या मामले में गड़बड़ क्या है? एग्जैक्टली ठीक है. एग्जैक्टली क्या इज इट अ ट्रैप लेड आउट? राइट. इज इट प्लान्ड? Right. Are the Pakistanis moving their infantry and Pakistanis, they are mindless people. They are mindless people. ठीक है. Do they want कि ऐसे एस्केलेशन पे बात पहुंच जाए जहां से कंट्रोल ना हो, एक युद्ध, और ये ब्लो अप करे और आपकी सरकार को भी दिक्कत हो और आपकी इकोनॉमी को भी ब्लीड हो? क्योंकि लेट्स से पाकिस्तानीज कैन नॉट सस्टेन दिस मोर देन 1 week. उनकी इकोनॉमी नहीं है. Absolutely. ठीक है. Absolutely. And can you just imagine for an economy which has just recently got upgraded to a decent thing. Yes, जिसको IMF bailouts मिल रहे हैं. And they are talking about fighting a war of full-fledged civilizational war. ये कौन से पागल लोग हैं? मेरे भुट्टो का था ना कि हम घास खा लेंगे और न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे. इंडिया को बोलना चाहिए घास भी तब उगेगी जब हम पानी भेजेंगे. वजह से पाकिस्तान 70 साल भिखारी रह गया सर.
वही तो बता रहा हूँ, जनरल जिया ने जो इंडोक्ट्रिनेशन चालू करी पाकिस्तान की, इस्लामाइजेशन, उसके बाद से उनका जो है रेडिकलाइजेशन का दोबारा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं because it suited American plans. Absolutely. Because without radicalized And youths, how you cannot funny- send them. How come you can send them to die in Afghanistan for an alien cause? मोर देन दैट, उनका डिफेंस मिनिस्टर किसी वेस्टर्न चैनल पे बोलता है, किसी ने पूछा क्या कि कौन सा डिफेंस मिनिस्टर उनका? अभी वाला? हाँ, अभी वाला। ये तो पाकिस्तानी नहीं है, इसकी तो सिटीजनशिप ही नहीं है पाकिस्तान की, डबल सिटीजन होगा ना। ठीक है, ठीक है। तो ये बंदा वेस्टर्न न्यूज जर्नलिस्ट पूछती है कि आपने ट्रांसलेशन भाई मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पहलगाम में क्या हुआ, ये ऑल दैट, एंड यू एवरीवन मस्ट हैव सीन द इंटरव्यू, एंड देन ही सेज हमने आपके लिए तो 30 साल से किया है डॉटी काम। आई थिंक व्हाट, ठीक है, दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट कि हाँ हम जिहादी बेचते हैं, हम ये करते हैं, हम रेडिकलाइज, can't hide it also. Can't hide it. So But now the problem, Navrub bhai, is there is a majority of Pakistani youth, because of lack of education, because of lack of information, they are actually zombies. They do not know what is happening. But of course, there is a sizable population of sensible Pakistanis also, absolutely, who have seen the world, absolutely, who are trying to walk, absolutely, who has aspirations like our youth. But ये हम जब बोल रहे हैं ना, तो इस पे हमें इंडिया से भी गालियां पड़ेंगी कि हाउ कम आप ये बोल रहे हो कि भाई पाकिस्तानी यूथ में से ऐसा, बट ऐसा है, देयर इज अ पोर्शन, दे आर हॉस्टेज। बट हमें एक चीज ध्यान रखना है नवरूप भाई, आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, यू नो दैट, and I'm a very proud nationalist also. I'm very proud about my roots, and I believe in Akhand Bharat. I believe in culture and correct. tribes and all these sort of things. But for achieving that goal, how you are going about it, what is your approach, will decide our destiny. Absolutely. Because अगर हम पाकिस्तानियों जैसे बन जाएंगे तो हमारा डेस्टिनी भी पाकिस्तानियों जैसा ही होगा. बिल्कुल, I agree with you totally. And like my final words to your listeners and viewers will be, इसका मतलब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अमन की आशा वाला बन ना बिल्कुल आपको कोई वो अमन का तमाशा है, आशा नहीं है, आपको रिटेलिएट भी करना है, करेक्ट, किस अप्रोच से करना है वो, see which is why my funda since the day Pahalgam happened and I heard those screams in the valley, I literally cried in the night. Same here. ठीक है, same here. It was hauntingly. What do you think, नवरूप भाई, कि मैंने अपने मेरा नया चैनल है, मैंने क्यों नहीं वीडियो डाला? ये वीडियो पे तो आपको सबसे ज्यादा हिट्स मिलते हैं ना, करेक्ट, मैंने क्यों नहीं डाला? I felt so heavy that I literally cried for a minute कि भाई कैसे वो चिल्ला रहे थे. You can't trade that even, नवरूप भाई. It is a tragedy. It's a tragedy, absolutely. आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते. You cannot convert that into a product. बिल्कुल, agree, totally. And use it to your benefit. Absolutely. So retaliation तो बनता है 100%, and it has to be disproportionate to an extent that they do not dare to do it ever again. But I am just in favor of a well thought out policy. Exactly, well executed, and so that we know where to stop and we know कि message convey हो गया, बस correct. And for me, the 80% of the job is already done by IWT. Absolutely. Indus Water Treaty. And if that is implemented in letter and spirit, then they're screwed. They're absolutely. So my final, I don't want to screw the Pakistani youth, but we can't help it. I want to screw the Pakistani military. Absolutely. Because they are also against the Pakistani youth. Absolutely. Now, my final, to end this and to your listeners and viewers, we are living in an era where the world is going through a reset. Correct. Where we are having a trade reset. World is going crazy. Correct. Where we say the old trading rules do not apply, where WTO is dysfunctional, there is no appellate body. Correct. Where US is withdrawn out of WHO, UN Human Rights Commission, right? Where he says UN is dysfunctional, totally gone, done. Trade war एक चल रही है, where the dollar is getting debased. Correct. Where China is mounting e-renminbi, digital currency, doing its BRI and digital Silk Road, ठीक है, and KIPS,
payment system. Correct. It is rolling that payment system to bypass US SWIFT and US dollar. Correct. There is a huge movement in the world from de-dollarization towards gold. Correct. Gold is making new highs, right? Correct. Russia, China, PBOC, RBI, they are buying huge leverage of gold. True. There is a sell-off in US treasuries and bonds which is happening. Correct. Which is why the American administration ने सर पकड़ लिया कि क्या चल रहा है. Japan is refusing to be plazaed once again. Correct. With America. Britain ने कहा we are not hurry of a US trade deal. Correct. ठीक है. People are resisting the American pressure. So मेरा, yeah, sure. Let me finish. Yeah, sure. So you see a stage of a monetary reset which is happening. Absolutely. ठीक है. The world economy पूरी churn में जा रही है. This symbolizes, and plus you have a geopolitical reset where you have a bipolarity emerging between two poles of America and China who want to restructure supply chains. मेरा semiconductor, मेरा mineral supply chain, मेरा payment system, मेरी market, मेरा capital. China का मेरा payment system, मेरा BRI, मेरे rare earth, मेरे semiconductor. In the middle of them, there are middle countries who want to trade with both, which is Russia, which is India, which is UAE, which is Singapore, and probably Gulf countries. Correct. So this is becoming a multipolar world, which Treasury Secretary of State Marco Rubio accepted. So your listeners need to understand that the world is going under a transition. Correct. सही बोल रहे हो आप. बिल्कुल. And this resembles 1930s. एकदम. बिल्कुल. हाउली स्मूथ टैरिफ एक्ट आए थे. बिल्कुल. पाउंड का डिबेसमेंट चालू हुआ था, जिसको बोलते हैं कि दुनिया की खेमेबंदी हो रही. खेमेबंदी हो गई, शुरू हो गई थी. बिल्कुल. पाउंड का डिबेसमेंट चालू हुआ था. British Empire started to decline and it started to, do all kind of nonsense to retain its hegemony. Correct. America started to grow up as a power. Correct. Right. Ultimately, that Howley Smooth Tariff have led to the rise of nationalists of Mussolini and Hitler in Germany. Correct. Populist nationalist movement rose up, economic nationalism chalu hua. Correct. And that ultimately all trade wars lead to the military war. Absolutely. which means America and China will ultimately land up into a conflict. At Correct. end of the day, China's aim is to avenge the century of shame, the humiliation of the opium wars. Correct. मैं आप लोगों ने मुझे बर्बाद किया, मैं अपनी ग्लोरी पाक के रहूँगा. बिल्कुल. अमेरिका का पर्पस है कि वी नाउ नो कि वी आर अ डिक्लाइनिंग एम्पायर, सो लेट्स अरेस्ट द डिक्लाइन एंड स्लो इट डाउन एज do whatever it takes. Do whatever. I have to blow up the global system, so it be. True. Absolutely. If I go down, so be, but I'll take you down as well. Absolutely. Right? For you to save your ass, you need to keep me at the throne. Correct. So we are living in an era where economics is uncertain, Correct. where monetary order is resetting, Correct. where alliances are going to fragment and form, where there is no clarity on, it's a fog of war. And in this situation, it is our humble duty True. to stand and back our institutions, Correct. back our government, Absolutely. and stand firm in every hour of crisis. Absolutely. This government, for all its flaws, has done some wonderful job in manufacturing. Correct. Defense manufacturing Relatively much better. than before. Correct. Defense may be a bit slow. Yeah. Defense may I have a lot of complaints. But ठीक है. But now hopefully they will go after realizing the crisis. Let's hope they fast track it. You have written so. They fast track not by importing. I hope. I really hope Yeah, so. Right. yeah. कहीं ये ना हो कि अमेरिका बोले कि अब लड़ाई लड़ी है, असला मिला है, हाँ, तो अब F-35 खरीद लो हम लोगों से. वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी. ठीक है. I mean, if now we go for F-35, it will be disaster. And one final question. Yes, you back them, you support them everywhere. We as Indians, for our bare existence, now need to rise up, Correct. stand up, be counted economically. Otherwise, next 5, 7, 8 years for next 1 decade is full of turmoil. And I think Navroop bhai, in the midst of chaos, we should not think like a pawn anymore. No.
We think like a power. Yes, we are a power. We are a power. And we have limited resources, but we are a serious power. And I would like to assure your listeners, for whatever for whatever I have read, for whatever I have written so much, India is going to emerge as a power. Okay, a third largest economy by 2028, 2029. And the world growth is going to be derived by three economies in the world, that is America, China and India. True. We are already 4.3 trillion. 4.7. 4.3. Germany is 4.4 and Japan is 4.9. So we're just $5.5 trillion away. And I think last 1 year we have grown $1 trillion. Yeah. So you imagine we have grown significantly, and which is why I say that that ceasefire probably helped us. Because we had relative peace. And if I think from the holistic point of view, it not just helped us, it helped Pakistan also. They came out of chaos. Correct. And moreover, the China going back from Ladakh, it actually helps us. आप सोचो ना यार, एक साल में हमारी $1 trillion बढ़ी है इकोनॉमी. पाकिस्तान की कटोरा एटलीस्ट उनसे हाथ से छूट गया है. They have some sort of breather now. Yes. China has gone back from Ladakh. Yes. So there is a lot of positives which happened. Exactly. So I think we need to build on that. Yes, absolutely. I totally agree. Build on the positives, strengthen your defense, take the opportunity of trade war. And it is good for USA people also. Yes. The people of USA also. Yes. Because if we remain as a bridge between China and a democratic India with a manufacturing powerhouse will be far more easily, and who can do business with both China and India, and US and USA. True. So we could really be the that guiding light to the world, a spiritual light. So instead of a fool like Asif Munir, yes, Pakistan should choose their heroes correctly. Absolutely. So that's our closing. That's my I really wish sense prevails in next few days. Absolutely. On the Pakistani establishment. We are saying this in a very wrong time. Exactly. because they are behaving. Asif Munir is behaving senselessly. Asif Munir, it seems he has taken a supari from the West to ensure and give them another chaotic South Asia and Asia. Up to him. But I think our leadership will be very matured response. I think we have the best people in we have the best people at the command, and we should with the best intent. Yes, and we should definitely support them wholeheartedly on it. That's it. Thank you, Navru Bhai. Thank you so much. It was wonderful to do this podcast with you. I know. Really, it was my first, so I am sure there will be a lot of mistakes. It was my first also for kind of this video concept. I think there might be some mistakes from our end, but we tried to be genuine, and it was not scripted as it was not. Absolutely. Yeah, though we had the points and everything, but we went in the flow of it. Absolutely. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. God bless. Yeah.